کیجئے، کتابوں میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حج کی ندا عام کر دی، جب جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں میں حج کی صدا بلند کی، حج کی دعوت دی، حال یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے لے کر کے پچھم تک، زمین سے لے کر آسمان تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں تھے سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کو سنا۔ صرف دنیا والوں ہی نہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے، جتنے پیدا ہونے والے بندے ہوں گے جو اپنے باپ کے اسلام میں تھے، ماں کے ارحام میں تھے، سارے بچوں نے جو قیامت تک پیدا ہوں گے سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جس بندے نے جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا پہ لبیک کہا ہے اپنی زندگی میں اتنے ہی مرتبہ وہ حج کرنے کے لیے جائے گا، اپنی زندگی میں اتنے ہی مرتبہ وہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی خوش نصیبی ہوگی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے گا، لیکن بد نصیبی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو سارے سامان سفر موجود ہونے کے باوجود بھی، سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی، آج کل کے دور میں سب سے بڑا ہے روپیے پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ انسان نہیں جا پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ بہرحال اب ذرا غور سے سماعت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے کے بعد لوگوں میں حج کی دعوت دی، لوگوں کو حج کے بارے میں بتایا، اے لوگوں خانہ کعبہ کی حج کے لیے آؤ۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، صحابی رسول کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم لوگ حج کرنے کے لیے آئیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر وہ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم لوگ حج کیا کریں؟ میرے آقا خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم لوگوں کے اوپر حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی سنو، تم نے بار بار مجھے یہ بات کہی کہ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ اگر میں تم کو یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتے، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہر سال حج نہیں کر پاتے، ہر سال حج کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آج تو ہم میں سے ایسے انسان ہیں جن کے اوپر روپیے پیسے ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، لیکن جان بوجھ کر کے وہ انسان نہیں جاتا ہے۔ یہی سوچتا ہوگا شاید اگر اس میں ہم پیسہ لگا دیں گے تو پھر ہمارا کیا بچے گا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ میرے آقا کی نگاہ کرم جس پہ ہو جائے پھر اس بندے کا بیڑا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ایک واقعہ، سارے لوگ مل کر کے درود پاک کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ یہ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اپنی سواری پہ بیٹھ کر کے چلے جا رہے تھے، لیکن چلتے چلتے جنگل سے ہو کر کے راستہ گزر رہا تھا۔ جو ہی جنگل کے پاس پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل دھیان سے سنیے گا، ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل ننھا سا بچہ، نابالغ کی عمر ہے، نابالغ کے عالم میں ہے، وہ چھوٹا سا بچہ زبان سے کچھ پڑھتے ہوئے اسی راستے سے چلا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے کے پاس جو ہی پہنچے، حضرت شیخ فتح موصلی فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس بندے نے، اس چھوٹے سے بچے نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت شیخ فتح موصلی فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے پوچھا اے بچے ذرا یہ تو بتاؤ، بیٹے یہ تو بتاؤ کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں تم چلے جا رہے ہو؟ بچے کا جواب سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچے نے جواب دیا حضور آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہیں اور نہیں بلکہ بیت اللہ شریف جا رہے ہیں۔ بول دیجیے سبحان اللہ، بیت اللہ شریف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ فتح موصلی فرماتے
हैं, ए मेरे बेटे ये तो बताओ कि आखिर तुम जुबान से कुछ पढ़ते हुए चले जा रहे थे, आखिर क्या पढ़ रहे थे ये तो बताओ। उस बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर मैं कुछ और नहीं पढ़ रहा था बल्कि कुरान करीम की तिलावत करता हुआ चला जा रहा था। फिर कुरान करीम की तिलावत करता चला जा रहा था। हजरत शेख फतेह मुसली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए बच्चे जरा ये तो बताओ, तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत कम है, तुम कमसिनी के आलम में है, तुम नाबालिग के आलम में है, अभी तुम तो बालिग ही नहीं हुए हो, इतने बचपने की उम्र में आखिर इतनी मसरूफियत क्यों कर है, इतनी ज्यादा मशगूलियत क्यों है, अभी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है। गौर से सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सारे लोग थोड़ा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत शेख फतेह मुसली फरमाते हैं, अभी तो तुम्हारी उम्र कम है, नाबालिगी का आलम है, आखिर पूरी तुम्हारी जिंदगी पड़ी हुई है, फिर भी इस उम्र में इतनी मशगूलियत क्यों है। उस बच्चे ने जवाब दिया, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, उस बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर मौत एक ऐसी चीज है जो हम जैसे उम्र वालों को भी पकड़ लेती है। मौत एक ऐसी चीज है जो हम जैसे बच्चों को भी आ जाती है, हम जैसे उम्र वाले बच्चों को भी पकड़ लेती है। पता क्या चला कि कभी भी किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम जवान हैं, अभी हम बचपने के आलम में हैं, या हमारी अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई। क्या भरोसा है। आज इंसानों का हाल ये है कि नमाज रोजे से दूर आते, एक दूसरे की गीबत करते हुए नजर आते हैं। यहाँ काम नहीं बना तो ऐसी जगह पे चुगली करेंगे जहाँ पे सोचते हैं कुछ काम बन जाए, इसके वजह से हम किसी का कुछ बिगाड़ सकें, किसी का कुछ कर सकें। आजकल इंसानों का आलम ये है। लेकिन अगर वही बंदा ये सोच ले कि हमारी उम्र कितनी है, हमारी जिंदगी कितनी है, ना जाने कब कहां हमारी मौत आ जाए, अगर ये दिल में ठान लिया, ये बैठा लिया कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो वो इंसान नमाज से गाफिल नहीं बल्कि नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा। वो इंसान किसी की गीबत नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं, किसी के बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। किसी को धक्का देना के बारे में नहीं सोचेगा बल्कि किसी को सहारा देता हुआ नजर आएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। किसी की मदद करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंसान के पास अगर 2 रुपया आ जाए तो उसकी घमंड का कोई ठिकाना नहीं रहता, उसके तकब्बुर का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो किसी के भलाई के बारे में नहीं सोचता, अपने आखिरत की फिक्र नहीं करता बल्कि किसी के पीछे हमेशा पड़े रहने के बारे में सोचता है। बहरहाल मैं ये बयान कर रहा था, हजरत शेख फतेह मुसली ने फरमाया, ए बच्चे अभी उम्र तो तुम्हारी कम है, पूरी जिंदगी बाकी है। बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर मौत एक ऐसी चीज है, मौत एक ऐसा अटल फैसला है जो हम जैसे बच्चों को भी पकड़ लेती है। हजरत शेख फतेह मुसली फरमाते हैं, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, आखिरी पॉइंट की बातें आ रही हैं। हजरत शेख फतेह मुसली फरमाते हैं, बच्चे तुम्हारे कदम तो बहुत छोटे हैं, तुम्हारे पैर तो बहुत छोटे हैं, मसाफत बहुत लंबी है, रास्ता बहुत लंबा है, आखिर तुम कैसे पूरे रास्ते को तय करोगे, पूरी मंजिल को कैसे तय करोगे। तुम जिस मकसद के लिए घर से निकले हो उस मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंच पाओगे। वो छोटा सा बच्चा जवाब देता है, जवाब सुन करके आपका ईमान यकीनन ताजा हो जाएगा। बच्चा जवाब देता है, हुजूर कदम को उठाना मेरा काम है और कदम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना उस खुदा ताला का काम है। कदम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना उस खुदा ताला का काम है। बच्चे का ईमान देखिए। उस हजरत शेख फतेह मुसली फरमाते हैं, मैंने बच्चे से पूछा, ए बेटे जरा ये तो बताओ कि साथ में इतनी लंबी मसाफत है, इतना लंबा रास्ता है, तूने साथ में कुछ खाने के लिए कुछ तोशा वगैरह लिया है ना, या नहीं लिया है, तुम्हारे साथ कोई सवारी है या नहीं है। बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर आप कैसी बातें करते हैं, हमारे कदम हमारी सवारी है, हमारे पैर ही हमारी सवारी है और हमारा यकीन ही हमारा तोशा है, हमारा यकीन ही हमारा ज़ादे राह है। हजरत शेख फतेह मुसली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इतना कहने के बाद वो बच्चा वहीं से गायब हो गया। अब जब मैं अपनी सवारी पे सवार होकर के बैतुल्लाह शरीफ पहुंचा तो क्या देखा कि वो छोटा सा बच्चा हमसे पहले बैतुल्लाह शरीफ पहुंच चुका है, हमसे पहले बैतुल्लाह शरीफ पहुंच चुका है। यकीन रखिए, ईमान अपना पुख्ता रखिए। आज हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हर जगह पे मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। आखिर इसका सबब क्या होता है? ज़्यादातर इसकी वजह ये आती है कि हम में अपने में से ज़्यादा बिगाड़ हो चुका है।
लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी वजह है कि हमने सुन्नत रसूल से दूरी इख्तियार कर ली, नमाज रोज़े से, अपनी शरीयत से दूरी अख्तियार कर ली है। यकीनन ऐसे दौर में, ऐसे हालात में आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग किसी का बिगाड़ना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी की गीबत और चुगली करने के बजाय आप मस्जिद में हाजिर हो करके सिद्क दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करके नमाज पढ़िए और अपने मुसलमान भाइयों के हक़ में दुआएं कीजिए। आज जो जालिम बादशाह हमारे ऊपर हुकूमत करता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों को परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे जालिम बादशाहों की हलाकत की दुआ कीजिए। आप अपने में बिगाड़ नहीं बल्कि बनावट पैदा कीजिए। शायर कहता है, मुत्तफिक हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम। अगर लोगों में इत्तेफाक है, अपने भाइयों में इत्तेफाक है, गांव वालों में इत्तेफाक है, मुत्तफिक हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम। मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। अपने ही में फूट है, अपने ही में बिगड़े हुए हो, मुंतशिर हो, फैले हुए हो, किसी को देखना नहीं चाहते हो तो मरो, फिर शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, गीबत चुगली में टाइम ज़ाया करने के बजाय तस्बीह व तहलील में टाइम गुजारने की कोशिश कीजिए। अपने मुसलमान भाइयों, अपने दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों के हक़ में दुआएं कीजिए। बस बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया के मुसलमानों की जान माल की हिफाजत फरमाए और ऐसी जालिम बादशाहों से हम लोगों को निजात अता फरमाए और ख़ास कर यहाँ के लोगों को शादो आबाद फरमाए। गलत कामों, गलत रास्ते पे चलने से परहेज़ करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े